یہ شرمناک. اور پھر ان کی باتیں سنو, گاڑی لے کے شعیب کہاں پانی ہے, اب یہ اگلا ٹک ٹاک کے لیے قوم ریڈی ہو جائے. ہیلو کوئی تہمینہ, سمینہ, کرینہ, کہاں کوڑا پڑا ہوا ہے, میں آ رہی ہوں کوڑا اٹھانے, اس کے علاوہ ہمیں ٹک ٹاک ضرور ملے گی بدلے میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. مسرت صاحبہ, یہ جو کوڑا ٹیکس ہے, ہم نے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ضروری ہے صفائی کرنا, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہ آلریڈی ایک ذمہ داری ہے ایک انتظامیہ کی, جس کو انہوں نے کرنا ہے بہتر. جو ٹیکسز ہم سارے ادھر ادھر ادا کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے اوپر بھی ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو کیا وہ ٹیکسز اتنے ناکافی ہیں کہ اب ہمیں کوڑا ٹیکس بھی دینا ہے؟ دیکھو ارملا, میری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ صرف ایلیٹ کیپچر, رولنگ ایلیٹ, اور صرف اس میں ان کی مراد کے لیے, ان کی 5-5 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے کے لیے, ان کے جو لانز ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے اربوں روپے کے بجٹ چونکہ انہوں نے بڑھا دیے ہیں, تو یہ عوام کا خون چوسنے کے اوپر اتر آئے ہیں. بہت افسوسناک ہے. دیکھو پوری دنیا میں جو ٹیکسیشن ہے وہ غریب آدمی سے نہیں, ان کو استثناء ہے, اور یہاں پہ غریب آدمی کے اوپر مجھے یہ بتاؤ جو 2 مرلے 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اور پورا خاندان رہتا ہے, 2-2 3-3 فیملیز رہتی ہیں, آپ ان سے یہ پیسے نکال رہے ہو. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پہلے جتنا بجلی کا بل آتا تھا ایک عام آدمی 1 مرلے 2 مرلے 3 مرلے کے مکان میں, اتنا انہوں نے کوڑا ٹیکس لگا دیا ہے. تو لوگ کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ میں کچھ ہوش ربا فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, کیونکہ ان کی جو ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی جو ترجمان ہیں, وہ سوائے فضول لفاظی کے اور لوگوں کے اوپر ایک تو لوگوں کو زخم گہرے گھاؤ دیتے ہیں مہنگائی کی شکل میں, اور پھر اس کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے ایک بالکل نان فیکچول آ کے ان کی ہمیں گفتگو سننی پڑتی ہے, ان کی ہمیں ٹک ٹاکس دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھو ارملا, کرونا کے بعد پوری دنیا میں لوگوں کو, کیونکہ مہنگائی 2021-22 کے بعد اچانک سے کووڈ کی وجہ سے بڑھ گئی تھی, پوری دنیا اپنے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. یعنی کہ جو 2021-20 اور 21 میں جو قیمتیں تھیں پوری دنیا نے اس سے 8% کم کر دی ہے اشیاء خوردنی پہ, لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. اور ہم اس وقت 2020 اور 21 سے 60 سے 70% مہنگائی زیادہ ہماری غریب عوام جھیل رہی ہے. میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. دیکھو یہ جو ٹیکسیشن جو ہمیں آ کے بتاتے پوری دنیا میں بہت ٹیکس ہوتے ہیں, تو ان عقل کے اندھوں کو بتائیں کہ پاکستان میں اگر ٹیکس پہلے کم تھا تو وہ کوئی حکمرانوں کی مہربانی کی وجہ سے کم نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کم ہے. مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان میں جو آمدن ہے $1500 پر کیپٹا پر ایئر ہے پاکستانی شہری کی, اور دنیا میں یہ 25,000 سے 30,000 کے بیچ میں ویری کرتی ہے پر کیپٹا. اور ہمارے خطے کے ممالک میں ارملا یہ 4,000 سے 5,000 پہنچ چکی ہے. اور خطے میں کون شامل ہے؟ انڈیا, بنگلہ دیش اور اس طرح کے ممالک, سری لنکا وغیرہ. جب آپ کے غریب پبلک کی آمدنی $1,500 پر کیپٹا ہے, اس کے اوپر یہ بجلی, اور بجلی کی میں آپ کو ایک بتاؤں, پاکستان اگر میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جس وقت آپ ہمارے زمانے میں جب 2020-21 میں آپ دیکھو, جب ہم کرونا کو ڈیل کر رہے تھے تو طوفان نے بدتمیزی مچایا ہوا تھا کہ جی مہنگائی زیادہ ہے یہاں پہ. اس وقت 3 ڈیفرنٹ سرویز آئے تھے دنیا میں, اور وہ سرویز کیا کہتے ہیں ابھی پڑے ہوئے ہیں, دیکھ لیں جا کے ویب سائٹ پہ. ان 3 سرویز کے مطابق پاکستان کے اندر کاسٹ آف لیونگ سب سے کم تھی. پاکستان, اس کا مطلب آسان زبان میں بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک تھا 3 ڈیفرنٹ سرویز کے اکارڈنگلی 2020-21 میں. مثلا کیسے سستا تھا؟ رینٹ اس میں ہمارا پوری دنیا میں کم تھا, لیکن صرف افغانستان کا ایک ایسا ملک تھا جو رینٹ میں ہم سے کم تھا, کیونکہ جنگ تھی, وہاں پہ لوگ رہنے والے زیادہ نہیں تھے. اس کے بعد بجلی میں جو دنیا کے 18 سستے ترین ممالک تھے, ان میں ہم 18ویں نمبر پہ تھے. اور جو تیل صرف ہمارا ان ممالک سے مہنگا تھا جو خود جن کی تیل کی پیداوار ہے. اور اس کے علاوہ رینٹ, ایجوکیشن, یہ گروسری, ان تمام چیزوں میں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک تھا.
आई मीन खित्ते के भी तमाम ममालिक से और पूरी दुनिया से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम थी, और आज इन्होंने इस मुल्क में लोगों का मरना मुश्किल कर दिया, और उसके ऊपर जो बिजली की जो कीमतें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि दुनिया ने क्या किया, कोरोना के बाद अपने शहरियों को रिलीफ दिया, और 2020-21 के बाद जब महंगाई की लहर आई थी उसमें तो उन्होंने 8% इजाफा कर दिया, और हमने क्या किया, हमने 60 से 70% महंगाई की। लोगों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। आप ये देखो जो बिजली के बिल थे क्या वो कम थे कि अगर किसी की सैलरी 30,000 है उसको 40-50 हजार बिल आ रहा, और ऊपर से कूड़े के बिल के जो मैं देख रही थी मुझे शर्म आ रही थी कि आपने 5 मरले के घर के लोगों की हालतें जार जाके देखें, 3 मरले के लोगों की हालतें जार जाके देखें, उनके लिए ये 500 मायने रखता है, और आप फैसिलिटी दे कोई नहीं रहे, टैक्स पे टैक्स। यानी कि देखो ये मैं फैसिलिटी वाली बात की उमरा से लिया जाता है जी, मैं आपकी फैसिलिटी वाली बात के ऊपर पे करना चाहती हूँ सरद साहिबा, ये डिवीजन है कि पूरी दुनिया की जहाँ आप एग्जांपल दे रही हैं, जाहिर है हम सब जानते हैं, आपने भी सफ़र किया होगा, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड करते हैं वो चाहते हैं और देखते भी हैं कि अगर वो अपने शहरियों से टैक्स लेते हैं तो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा जो है वो भूखा नहीं सोएगा, उनका बच्चे के स्कूल की एजुकेशन फ्री है, उनके बच्चे का जो मेडिकल का खर्चा है वो फ्री है। अब मसला ये है कि टैक्स देने में आपको और मुझे शायद एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ इस बात से एज अ शहरी कि अगर मैं टैक्स दे रही हूँ तो मुझे मेरी लाइफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। ये कूड़ा टैक्स ले ले या कोई और टैक्स ले ले, लेकिन एटलीस्ट इन रिगार्ड कुछ अवाम को फैसिलिटेट तो करें। नहीं उर्मिला, आई डिसएग्री, बिकॉज ऑलरेडी आप टैक्सेशन की मद में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट हमें मिल रहा है जीरो, राइट? दोबारा सुन लो, ये फैशन में हम कहना छोड़ दें कि ठीक है हम टैक्स देने के लिए जब भी नया टैक्स लगाते हैं तो हम टॉक शोज में बैठ के ये हम कहना बंद करें, गरीब मुझे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी को अब तो हमें भी फर्क पड़ता है, मैंने भी सोलर सिस्टम हमें पड़ रहा है, हमें बिल्कुल पड़ रहा है। अब सुनो अब ये लेटेस्ट फिगर सुनो, ये क्या कहते हैं, एक जेनेरिक जाहिलों का टोला टॉक शोज में आएगा, स्पीचेस करेगा, लिखी हुई पर्चियां पढ़ के पूरी दुनिया में महंगाई है। एब्सोल्युटली नॉट। अब 2024 में जो लेटेस्ट इस खित्ते में जिसमें मैं और आप रहते हैं, वहां पे हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहां पे फी यूनिट रुपये में मैं बात कर रही हूँ, बिजली का फी यूनिट 16 से 18 रुपए। मैं देख के बता रही हूँ कि मैं फिगर्स आप गलत नहीं बता सकते। उसके बाद हमारे यहाँ इस वक्त उसकी फी यूनिट कीमत है 70 रुपए। ये कहाँ लिखा है कि इंडिया में, बांग्लादेश में फी यूनिट जो वो अपने सार्फिन को दे रहे हैं 16 से 18 रुपए और हम दे रहे हैं 70 रुपए? ये क्या अजाब है हमारे ऊपर। फिर जो टैक्स हम पहले दे रहे हैं उसकी यूटिलिटी, उसके अगेंस्ट आपको कोई एक फैसिलिटी, यू शुड टेल मी, हमें क्या मिली है? क्या हमें एजुकेशन दे रही है गवर्नमेंट? क्या हमें हेल्थ फैसिलिटी दे रही है? हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया था एक सफेद पोश और एक मिडिल क्लास के लिए, इट वाज गरीब के लिए तो था ही था, बहुत बड़ी रिलीफ थी जो इन जालिमों ने छीन ली। लेकिन क्या है, गाड़ी के टायर बदलने हैं 2 करोड़ लग गया, नई स्पीकर आपको गाड़ी लेके देनी है, मेरे और आपके कूड़े के टैक्स लगाने पड़ रहे हैं उनको। वजह है उन्होंने खर्चे अपने बढ़ा दिए। जरदारी साहब ने अपने लोन का खर्चा अगर अरबों रुपए बढ़ा दिया है पर मंथ और एनुअली जो बजट में इनके जो, और फिर एक और चीज देखो, हर बजट में गरीबों के लिए क़यामत होती है, पहाड़ टूटता है, और ब्यूरोक्रेसी को जिनके थ्रू इन्होंने लूटना है उन्हें डबल बोनसेस, उनकी सैलरीज डबल। और फिर मुझे तो शर्म आती है, ये जो हमारे जो मेरे कोलीग्स हैं, मतलब कि तुम लोग झूठा खाना छोड़ दो, आप लोगों को क्या जरूरत थी, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं कि जी आप लोग भी अपनी वो जो डेली जो आपका अलाउंस है, पेट्रोल ठीक है महंगा हो गया तो इन्होंने अपनी भी तनख्वाहें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बढ़ा ली हैं। ये कैप्चर एलीट इस मुल्क को खा चुका है। अब गरीब अवाम मर रही है, खत्म हो गई है, उसके ऊपर ये शर्मनाक। और फिर इनकी बातें सुनो, गाड़ी लेके शुएब कहाँ पानी है, अब ये अगला टिकटॉक के लिए कौम रेडी हो जाए। हेलो कोई तहमीना, समीना, करीना, कहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं आ रही हूँ कूड़ा उठाने, इसके अलावा हमें टिकटॉक जरूर मिलेगी बदले में, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सीरियसली मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रही हूँ। मैं पहले मतलब पॉलिटिकल बातें हम लोग करते हैं, जब ये दुनिया के हालात देखते हैं कि लोग अपने रियासत माँ के जैसी है,
हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी ये कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है, जहाँ के सारे हालात हमारे जैसे थे और वो हमसे कहीं आगे निकल गए, और हम सेल्स टैक्स और पता नहीं कौन कौन से बदमाश टैक्स लगाने के बाद अच्छा, अब जी जो 2 मरले का मकान है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, और मैं आप दे क्या रहे हो? अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये कि मिर्ज़ा साहिबा, आप भी हुकूमत में रहे हैं, आपकी जमात भी रही है, ये जो आकर बात करते हैं कि जी खुशहाली आ गई है, तरक्की आ गई है, मैं आपसे एज ए सियासतदान में तहरीक इंसाफ के रुकन के तौर पे नहीं आपसे पूछ रही, क्या आप लोगों को रियलाइजेशन होती है इन सियासतदानों को कि जो ये बात टीवी पे आकर कर रहे हैं या जो ये फैक्ट्स बता रहे हैं, ये किस फैंटेसी में रह रहे हैं? ये कौन सी खुशहाली है जो सिर्फ इनको नज़र आ रही है और आवाम तक वो नहीं पहुंच रही? ये रात को या जब अपने जॉब से फारिग होते हैं सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हमने टीवी पे बैठ के एक ऐसी आवाम को मिसगाइड किया है जो हमें मैंडेट देकर लाकर इन पार्लियामेंट के अंदर बिठाती है, हमें हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके मसाइल का हल करें। एज अ सियासतदान में सोच जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप लोगों का कोई इसमें सेल्फ एनालिसिस नहीं होता? देखो उर्मिला, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बट पॉइंट इज के देखो मैं बिलीव करती हूँ, या जब हमारी गवर्नमेंट थी, कि आप कंपैरिजन करें दुनिया के साथ भी। उस वक्त लोगों को अगर महंगाई फील हो भी रही थी तो दुनिया में हम बेहतर थे। आज हम अपने खित्ते में दुनिया में सबसे वर्स्ट हो गए हैं, जो कि कोहराम आपको नजर आ रहा है। आई बिलीव मसलन किसानों की अगर बात करें, हमारे दौर में किसान खुशहाल हुए, आपकी रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल हुई। मेरा मानना यह है कि इसका पैमाना ही पब्लिक होनी चाहिए, मैं और आप नहीं होने चाहिए, राइट? Yes, sir. इसका पैमाना पब्लिक होती है और वो आपको जो डिस्प्ले होना नजर आ जाती है अगर खुशहाली है। मसलन कोरोना के दिनों में हमने नहीं पाबंदी लगाई, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी एट पीक थी, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में मैं बेल कराने के लिए सैटरडे को थी फैसलाबाद में, मुझे वहां पे हमारे लोकल लीडरशिप और वकला है, उन्होंने बताया कि डेली बेसिस पे वहां पे यूनिट्स बंद हो रहे हैं। आप फिगर्स निकालें, हमारे जमाने में वहां पे मजदूर नहीं मिल रहे थे, वेजेस डबल थे, और सारा वक्त ये देखो। और फिर एक और चीज है, मैं ये कहती हूँ कि जो इम्पैक्ट होता है आवाम के ऊपर रिलैक्सेशन का और रिलीफ का, वो नजर आता है। उसके कुछ ये टेंजिबल चीज है, ये कोई ऐसी चीज हवाई थोड़ा है कि मैंने और आपने बातें करनी है, लोग फील करते हैं और वो रिएक्शन नजर आता है और लोगों को अगर खुशहाली मिलती है तो वो नजर भी आती है। थैंक यू वेरी मच मुसर्रत साहिबा।